कांग्रेस सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी है, ये कोई खबर नहीं है, पूरा देश जानता है। CWG, 2G, कोयला, एयरसेल मैक्सिस, एंट्रिक्स देवास, फार्म लोन यानी किसानों के कर्ज माफी में भी घोटाला, और अभी ये नया घोटाला सामने आया है, हेलीकॉप्टर घोटाला, कुछ लोग कह रहे हैं आर्म्स गेट, ये घोटाला उड़न खटोला। तो ये एक नया घोटाला है। देश एक ही चीज जानना चाहता है कि किसने खाया, कितना खाया। भ्रष्टाचार हुआ ये सबके नजर में है, क्योंकि कांग्रेस में एक भी व्यवहार बिना भ्रष्टाचार नहीं होता है। और इसलिए भ्रष्टाचार का कितना पैसा किसको मिला और कितना मिला, यानी सुषमा जी के भाषा में कहूं तो मोटा माल किसको मिला और कितना मिला, ये देश को उत्सुकता है। लेकिन कांग्रेस का एक तरीका है, एक पैटर्न है। और वो तरीका है कि पहले घोटाले की खबर को ही देखो मत, उसको नकार दो, उस पर बोलो मत। जांच जितनी टाल सकते हो टालो, घोटाले पर पर्दा डालने की हर संभव कोशिश करो, और कुछ भी नहीं हुआ तो देश को गुमराह करो। See, the Congress regime, particularly last 9 years, their hallmark is corruption. CWG, 2G, coal, Aircel Maxis, Antrix Devas, farm loan waiver, n number of scams. And this is the new scam, the VVIP helicopter scam. This has become really a hallmark of the UPA regime and the identity of the Congress. Now people in the country wants to know who has received kickbacks and how much. And that is why when country is asking this simple question, Congress has a pattern to diffuse it or to deflect it. First, they deny the existence of any scam. Second, they try to evade any answer on it. Then they try not to have any kind of inquiry. Ultimately, their mission is a cover-up mission. And if not possible, then deflect the attention to some other issue. कल भी सरकार ने ऐसा ही किया है। एक तो पहले सरकार ने जांच को टाला, यानी आश्चर्य है, पिछले साल जब ये घोटाला सामने आया, चर्चा में सुर्खियों का विषय बना, तो इटली की सरकार ने जांच शुरू कर दी जिनका फायदा होने वाला था, लेकिन भारत ने जांच को मना किया। अब ये बता रहे कि एक इंटरनल जांच हुई, रक्षा मंत्रालय ने एक आंतरिक जांच की और उसमें तुरंत क्लीन चिट दे दिया, देयर इज नो फाउल प्ले। और हमने जब सवाल पूछा तो बताया कि आधिकारिक जानकारी के अभाव में हम जांच नहीं कर सकते। तो हाउ द गवर्नमेंट ट्राइज टू अवॉइड द एनी प्रोब, सीरियस प्रोब? When the news first started leaking in, then the taped conversation came into public domain between the two middlemen. Italian government started serious probe, but Indian government did not. Now it is revealed that Indian government conducted, Ministry of Defense conducted some internal inquiry. What are the details of this? We want to know. What are the details of the internal inquiry? What are the findings?
but they released the findings that there is no foul play in the deal. They are always eager to give clean sheet at the first instance, denying the existence of any scam. And when I raised the question in Parliament, they replied that because of, in absence of any official evidence, we cannot carry out the investigation. So this is what the government has done. और अब कल जो किया है वो जो मैंने कहा कि गुमराह करने की कोशिश करना, बीच में एनडीए का नाम ले आए. अरे भैया, आप सत्ता में हो 9 साल, ऑर्डर आपने दी, कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, रेट आपने फिक्स किए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ हर कोई चीज आपने फाइनल की, पैसा आपने खाया, और बीच में एनडीए कहाँ गया? इसमें तकनीकी स्पेसिफिकेशन ये मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है भ्रष्टाचार. भाई, जो चीज देश को सस्ते में मिल सकती थी महंगे दाम पर लिया और उसमें पैसा खाया, ये घोटाला है. तकनीकी मुद्दा किसी ने उठाया थोड़ा ही ना है. सो दिस इज हाउ द कांग्रेस वांट्स टू डिफ्लेक्ट द अटेंशन by bringing in NDA's name unnecessarily, no reason. The issue is not the technical specification. Nobody has raised anything about that. The issue is the corruption. Issue is the price paid. Issue is the kickbacks received. So these are the issues. To divert attention from the real issues, they raise bogey of and bring somehow NDA name. We have seen this in 2G scam also. There's nothing to do with that. Now CBI is also very clearly given that in 2G scam, NDA period, every decision was given reason for allotment, in even coal blocks also. Everything is on record and recorded logically. So that is where there is no necessity of bringing in that name. You are ruling for 9 years. You finalized the contract. You decided the rates. You decided the quantity. You decided the technical qualification in 2005 and 6, not in 2003. And so the moot question is how much kickback is received and who has received it. And इसलिए हम 6 सवाल पूछ रहे. 6 हेलीकॉप्टर खरीद का कॉन्ट्रैक्ट और बाकी सारा यानी कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया? किसने दिया? यूपीए को. भ्रष्टाचार का पैसा किसको मिला? हु रिसीव्ड द किकबैक? हु ऑर्डर्ड द हेलीकॉप्टर परचेसेस? तीसरा है कि इन द चार्जशीट prepared in Italy, by the Italian, before the Italian court, the charge sheet mentions that rupees 200 crores were paid to the first family. There is mention of the family. The family. Who is this the family? कौन सा ये परिवार है जिसको 200 करोड़ रुपए की बात 2 बार इटली के न्यायालय के समक्ष 2 बार जिसका उल्लेख है परिवार का, वो कौन परिवार है? 200 करोड़ रुपए जिसको मिले, ऐसे परिवार का उल्लेख 2 बार इटली के न्यायालय के सामने जो चार्जशीट है उसमें है. ऐसी खबर आपने भी पढ़ी होगी. ये इसमें भी सीडब्ल्यूजी घोटाले में एमआर एमजीएफ का सारा अपन विलेज का देखा, गेम्स विलेज का, इसमें भी है. ये जो हस्के है, दिस हस्की हु इज वन मिडलमैन and the kingpin of the whole corruption scam of the helicopter deal, was director of EMR FGF. Is it a fact or not? CWG में भी उस समय वो है
अब ये घोटाला यहां भी है। और एक आईडीएस इंडिया करके है, आईडीएस इंडिया, ये कंपनी का नाम है। ये कौन कंपनी है? कहीं उल्लेख भी नहीं है। कॉरपोरेट अफेयर्स के और सेबी के सारे वेबसाइट ढूंढने के बाद भी इसका आता पता नहीं है, लेकिन इसको पैसे मिले हैं 100 करोड़ से ज्यादा। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है, क्या है ये? हम सवाल उठा रहे हैं इस पर। और मुख्य मुद्दा है कि अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो लेटर रेगुलेटरी आपने भेजा है क्या? द फर्स्ट इज who gave the contract for helicopter purchases. Second is who received the kickback. Third is who is the family whose mention is there for 2 times in the charge sheet presented in Italy. The fourth is what is the relation of the kingpin of this scam, Husky, with EMR MJF. Fifth is what is the fact about IDS India. And sixth is whether the government has given to the Italian government and UK government the letter regulatory for information and for bringing the culprits. वो जांच का आदेश देते हैं सीबीआई का, सीबीआई कुछ नहीं करेगी। We have seen this in 2G time. When we made pressure and media made pressure, Prime Minister immediately ordered CBI probe. What happened? 15 months, nothing happened, nothing moved. Only after 15 months, when the Supreme Court took suo motu notice, then only the CBI inquiry started yielding some results. So this is the track record of the government. So if CBI inquiry, ordering CBI inquiry does not satisfy the nation now, as Venkaiah Naidu ji has said that there actually needs to be an SIT appointed by the court, or as I put it, it has to be a court monitored inquiry. Unless there is a monitoring from the court, the CBI inquiry will not give results in time. यूपीए की सरकार है तब तक तो इसको कुछ आएगा ही नहीं बाहर। और इसलिए देश जानना चाहता है, अब देश का इंतहा हो चुका, इससे ज्यादा लोग सहन नहीं कर सकते, बहुत लूट लिया और इस लूट का हिसाब पाई पाई का देना होगा। और इसके लिए ये मुद्दा जहां भी उठाना है वहां हर जगह, संसद में और संसद के बाहर हम उठाते रहेंगे। आज इसके बारे में जो प्रेस नोट दिया है इंग्लिश में है, आज चूंकि कार्यालय में छुट्टी है तो भाषांतर तैयार नहीं हो पाया, तो यू विल एक्सक्यूज अस फॉर दैट। कोई सवाल है इस मुद्दे पर तो जरूर पूछे। हाँ, नहीं, ये एक्चुअली ऐसा नहीं कहा है, मैंने वो भी पढ़ा, ऐसा एक्चुअली नहीं, बहुत सारे पेपर ने सब जगह दिखा, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि गवर्नमेंट बार बार गुमराह करने की देश को कोशिश करता है खुद का पाप छुपाने के लिए। यह कांग्रेस का पाप है, इसमें एनडीए कहाँ गया? यार आपने ऑर्डर दिया, आपने कीमत तय की, आपने क्वांटिटी तय की, आपने पैसा खाया, इसमें एनडीए कहाँ गया? एनडीए का कोई मुद्दा नहीं था। जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकेशन की बात है, ये 10 साल से चल रही है, इसमें कोई विवाद का मुद्दा नहीं है। सुमित, हाँ, No, what we are saying is absolutely on the dot, and इसमें जो आपका इन्फ्रेंस है कि उन्होंने क्या कहा, इस पर इन्फ्रेंस पे मैं क्या बोलूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा, बीजेपी के लिए नहीं कहा। हाँ, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट।
किसने? मैंने तो पहले परिवार की बात की, परिवार की, द फैमिली। हु इज दिस फैमिली? मैंने तो ये पूछा है, द फैमिली, हु इज दिस फैमिली? ये जो भी है फैमिली कौन है? नेक्स्ट हाँ यही तो हमने मिस्टर पूछा है। मंगेश हाँ मैंने जो कहना है मैंने कहा, जो वहाँ चार्जशीट में शब्द है द फैमिली 200 करोड़, तो 28 मिलियन यूरोज, तो वो किसको दिए हैं? द फैमिली, हु इज दैट द फैमिली? इतना ही मैंने पूछा है। अखिलेश जी नहीं, 28 मिलियन यूरोज मीन 200 करोड़ रुपीस। हाँ, हाँ, नहीं करती है। कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक होती रहती है, आप देखते रहिए, लेकिन हमारी मांग है कि सुमोटो भी करती है और करनी चाहिए। मेरा इससे जुड़ा हुआ सवाल है, एसआईटी की आपने मांग की है, आपने एक सीबीआई की एब्रीविएशन चेंज की है, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का आपने इनको नाम दिया है। कल निर्मला सीतारमण जी ने कोयला आवंटन के मामले में कहा था कि कुछ फाइलें जो है वो दबाकर बैठे हुए हैं, और वो फाइलें जो है वो कांग्रेस के जो 1993 से 2004 के बीच की है, वो फाइलें तो दी गई, लेकिन 2006 से लेकर 2012 तक की फाइलें जो है वो कांग्रेस उस पर कुंडली मार के बैठी हुई है। तो ये फाइलें जो है वो सीबीआई को दे देनी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। लेकिन अब आप कह रहे हैं, अगर इस हेलीकॉप्टर विवाद के मामले की बात करें, तो आप कहते हैं कि इस पर जो है वो सीबीआई को ये जांच नहीं देनी चाहिए। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा सीबीआई मॉनिटर, अपने पास एक ही एजेंसी है इन्वेस्टिगेटिंग की, और एसआईटी भी जब होती है तो सीबीआई से कुछ अधिकारी, कुछ दूसरे अधिकारी ऐसा लेकर एसआईटी बनती है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जब तक मॉनिटर नहीं करेगी कोर्ट, तब तक वो फ्रूटफुल नहीं होती है। ये कांग्रेस के ज़माने का अनुभव है, और इसलिए ये हमने मांग की है। सुजीत ठाकुर साहब विकास जी, आपने 6 सवाल पूछे और कहा कि इसमें सीबीआई नहीं कुछ कर सकती है, कोर्ट करे, और यही बात आप सीबीआई नहीं कर सकती ऐसा मैंने कहा। सीबीआई इंक्वायरी कोर्ट मॉनिटर्ड होनी चाहिए, ये मैंने कहा। यही सब मांग आप शुरू में पीजीए सेक्टर में करते रहे, हाँ, तो बाद में आप चले गए जेपीसी की मांग में। क्या ये मामला इतना बड़ा नहीं है कि जेपीसी की मांग भाजपा की तरफ से होगी? नहीं, कुछ चीज़ें आप भी लिखते जाओ ना, बताओ, बढ़ाओ दाम। सर, आपने वरिष्ठ नेता ने इंडिकेशन दिया है कि कुछ सीबीआई नहीं, तो इसीलिए हाँ, अमिताभ जी, अमिताभ से ना पीछे हाँ नहीं, ये एक बार पूरा होता है तो फिर दूसरा पूछो। हाँ, वो बोलते हैं। नहीं नहीं, अरे भाई, कोई भी दोषी हो उसको उसका नाम पर्दाफाश होना चाहिए, यही तो हम मांग रहे हैं। मैंने कहा कि इसको, इसमें तो कुछ नहीं, आपको लिखित भी दिया है, देख लो। मंगेश यही मैंने कहा, रूट में जाने का नहीं, इसके जानबूझकर एक राजनीति के तहत बार बार बेवजह उसका नाम घसीटने की एक आदत कांग्रेस की हो गई है। लेकिन ये चलता नहीं है। जनता के सामने कांग्रेस बेनकाब हुई है, कांग्रेस भ्रष्टतम सरकार है, ये लोगों के मन में बिल्कुल स्थापित है, और ये जो है उसी पर लोग उसका मूल्यांकन करते हैं, और इसलिए उनके कुछ कहने से या एनडीए का नाम घसीटने से होता नहीं, ये सारे पाप इन्हीं के हैं। बाप नहीं, पाप। राहुल सिंह हाँ लास्ट में I read that. So that is the compliment. That is the compliment Congress has received from Italy. अमिताभ सिराज जी हाँ नहीं, उसका निर्णय पूरा हम देखना चाहते हैं, क्योंकि किसानों का और कल कारखानों का दोनों की मांगे है, और हमें हमेशा हमने ये पक्ष लिया है कि किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए स्वामीनाथन कमीशन की तरह,
और उस पर आधारित जो सही प्राइस होती है उसमें ग्राहक को शक्कर मिलनी चाहिए। सरकार जिस तरह से नीति अपनाती है उसमें किसान भी लूटा जाता है और ग्राहक भी परेशान होता है। ग्राहक को भी महंगा दाम में खरीदना पड़ता है। तो ये दोनों स्थिति से बचा जा सकता है। आज हमारी यही कमेंट है। थैंक यू। थैंक यू।